By the channel, good mornings, leaders. I hope that you all are doing fine, and I welcome you all into this morning Zoom session. First of all, I would like to introduce myself. I am Graceful Nongrum. I am from Shillong, Meghalaya, and my current rank is Diamond Director rank. I would like to thank my Richard Ayurveda for giving me this opportunity to be present, to be a host in this meeting with you all. This is the first time for me to be in this national meeting. I feel excited and I feel scared at the same time, but I do hope that this session will be a fantastic one. So as we all know that today's Zoom meeting is about the question and answer, I request you all to keep the answer so that our speaker, Sir MD, will deliver us a very good answer and a satisfied one. I also like to thank Sir Chetan, who is our national trainer. It is because of you, sir, that I am what I am today. Through your guidance, through your inspiration, I am what I am today. So I also like to thank my upline, Sir Grimson Watlang. It is because of him that I got so many things and learned so many things about my recharge. I request you all the leaders to please keep the video on. Since this is the video meeting, you please keep the video on so that we can see each other. And I also request you to please present in this meeting along with a pen and a diary so that we can note the important information, the important things that our MD is going to deliver us. And also, if any one of you leaders, your friends is not yet here, you please take your 1 second time to call or to message them so that they won't miss anything from the session. I also would like to share some of my personal experience with my recharge. I joined my recharge since 2015, but I started doing my recharge from last year only. Since the moment I understand the system, I never stopped doing my recharge even a single day. I work hard and I feel proud of this company, of its system. And I do hope that you all also will feel the same way as I am. And at this present moment, I feel proud. I thanks my recharge for all the things. It's really a great blessing for me and for my family as a whole. At this time, I also would like to welcome our MD sir, Ashok Kulhari, who is our the great person of all time. I would like to call sir to please take your time as a welcome and as an honor to our Sir MD. I request you all to please give him a big claps. Sir, we welcome you. At this time, I welcome you to please take your time. Thank you, sir. थैंक यू ग्रेस मैम. माय रिचार्ज आर मॉर्निंग. ग्रेट. आपने वार्म रूप में जो है, ठंड बहुत ज्यादा है शिलोंग में, लेकिन आपने बहुत वार्म रूप में जो है स्वागत किया है. हमारे मान सम्मान पूरे देश के लिए जो है गर्व की बात है. एक लेडी लीडर जो है एक दूसरे लोकेशन से जो है आज के जूम मीटिंग की शुरुआत किया है. और उन्होंने जैसा कि बताया कि उन्होंने एक बार जब समझ में आ गया पूरा सिस्टम, तो उसके बाद में वो रुकी नहीं है. वो डायमंड डायरेक्टर हैं, लेकिन उनका डेस्टिनेशन डायमंड डायरेक्टर नहीं है इसके लिए. और वो रेगुलर क्या चीजें करती हैं उसी चीज को फर्स्ट टाइम जूम मीटिंग का होस्ट किया है, लेकिन जूम मीटिंग में लगातार आती हैं, तो इसलिए वो रोज सीख रही हैं, जान रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और सीख रही हैं और सिखा रही है. दोस्तों, आज का जो सेशन है हमारा, वो उसी कड़ी में एक सेशन है. आज का सवाल जवाब का सेशन है. तो ये सीखने सिखाने का सेशन है. एक्चुअल में सवाल जवाब मतलब कुछ लोगों के सवाल नहीं होते, कुछ लोगों के जवाब नहीं होते हैं. इस सवाल जवाब से हम लोग वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें धीरे 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 सीख लेते हैं जो इस बिजनेस के लिए जरूरी है. इस बिजनेस में छोटी छोटी चीजें जोड़ के बड़ा बनता है ये बिजनेस. और इस बिजनेस में जो व्यक्ति सीखने का एटीट्यूड में आएगा, वो व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाएगा. सीखने के लिए जरूरी है कि हमारे ड्रीम्स हो, क्योंकि विदाउट योर ड्रीम्स आपको कोई सिखा नहीं सकता. आपके ड्रीम्स आपको घर से बाहर निकाल नहीं सकते हैं. आपके ड्रीम्स के बिना, आपके ड्रीम्स ही वो हैं जिनके लिए जो है पैशनेटली आप जो है वर्क करते हैं.
ये मैं इन ग्रेस मैडम को कभी कभी देखता हूँ कि रात को 11 बजे भी अपने घर लौट रही होती हैं अकेली, अपना गाड़ी से जो है इवेंट करके 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। कभी कभी ये 3-3 दिन तक जो है अपना मेघालय देखने में हम लोग को लगता है बहुत छोटी सी एक जगह है, लेकिन जब आप जाएंगे मेघालय में तो आपको पता चलेगा कि वहां एक छोटी जगह के आगे एक और छोटी जगह, उससे आगे एक और छोटी जगह है, और वहां पे एक दिन में आपको लौट के भी आना पॉसिबल नहीं है। ऐसे इंटीरियर में वहां पे जाके छोटा छोटा टाउन है, छोटा छोटा कस्बा है और विलेज है। तो वहां पे 2-2, 3-3 दिन जो है अपने टीम मेट्स के साथ, और वो जब जब शिलोंग आते हैं तो ये अपने बहुत सारे एसोसिएट को भी वहां पे रोक देते हैं कि वो लोग 2-3 दिन वहां रुकेंगे, मीटिंग में भी रहेंगे, उसके बाद में पूरा समझ के उसको जाएंगे। तो ये फैमिली एक्सटेंडेड, जो एक फैमिली हमारे सिस्टम जो डेवलप कर रहा है, उसी में साथ में जो है हमारे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। तो उस ड्रीम को पूरा होने में अगर कहीं पे कोई ऐसी चीज हमारे बीच में बाधा आती है कि जिसको पूरा करने के लिए हमारे सामने कुछ सवाल आ जाते हैं, कुछ कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका कि हमारे पास जवाब नहीं होता है, तो वही सेशन जो है आज का सेशन हम लोग करते हैं, सवाल और जवाब। और उसके अलावा कुछ टेक्निकल भी कुछ चीजें हैं तो उसके ऊपर भी हम लोग जो है कुछ कुछ इसके ऊपर बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादा तो यहाँ पे नहीं बात करते हैं क्योंकि उसके लिए कस्टमर केयर हमारे पास है, पीआरओ का जो डिपार्टमेंट है, सेल्स का जो डिपार्टमेंट है, वो सारे लोग इसी के ऊपर काम करते हैं। लेकिन फिर भी कोई चैलेंज होता है तो उसके ऊपर हम लोग कुछ कुछ बात करते हैं। तो आप में से जिस भी साथी को लगता है कि भाई मेरे को ये सवाल अगर क्लियर हो जाता है तो मैं जरूर इस चीज के ऊपर बात करूंगा, मैं आगे जो है बढ़ने के लिए मुझे थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है, मैं मेरे को ये सवाल अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आज जो है हम लोग जो ड्रीम की जो बात करते हैं उसके अंदर मैं आप साथियों से एक चीज के ऊपर बात करना चाहता हूं कि ड्रीम के साथ जो है वो सबसे बड़ी हमारी ताकत क्या होती है, उस ताकत के ऊपर हम छोटी सी एक बात करना चाहते हैं। अगर मैं, आप सारे लोग इस जूम में हैं, आपसे मैं पूछूं कि सबसे ताकतवर चीज क्या है, तो आप अपने मन में उसको बोल के बताइए कि सबसे, दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है, सबसे ताकतवर, सबसे ताकतवर क्या चीज है? आपने सोचा आपके दिमाग में क्या चीज हो सकती है, उसको एक बार सोचिए। और मैं हमने जो हमारी जिंदगी में जो समझा है, जो जाना है, वो है सबसे ताकतवर जो चीज है वो है हमारे शब्दों की शक्ति। हम जो बोलते हैं वो शब्दों की शक्ति जो है बहुत जबरदस्त है, उससे मजबूत कोई चीज है नहीं। आप बोलेंगे कि सर ये इतना मजबूत कैसे है, तो उसके ऊपर पारिया जी ने एक दिल्ली में हमारा एक इवेंट हुआ था, बहुत अच्छी एक स्टोरी सुनाई थी। मैं उसी स्टोरी से जो है आज की मीटिंग में जो है अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो बात कुछ ऐसा हुआ कि एक बार अकबर ने जो है बीरबल से पूछा कि बीरबल, दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? तो बीरबल ने कहा, बोला महाराज, शब्द जो 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 बोलते हैं हम लोग वो सबसे ताकतवर है। बोला क्या बात कर रहे हो आप, शब्द जो बोलते हैं वो सबसे ताकतवर है? अरे भाई, कोई बोलता है हाथी मजबूत है, कोई बोलता है चीता मजबूत है, कोई बोलता है इंसान मजबूत है, कोई बोलता है कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी अदृश्य चीजें हैं वो मजबूत है, सेनाएं मजबूत हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं कि शब्दों की ताकत जो है वो बहुत मजबूत है। बोला हाँ महाराज, शब्द जो है ना वही सबसे मजबूत है। शब्दों में जो 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 बात होती है ना वो बहुत जबरदस्त होती है, क्योंकि हमारी जो जीभ है वो कुछ भी बोल के अंदर छुप जाती है। और वो जब हमारी जीभ कट भी जाती है ना, कभी कई बार कट जाते हैं ना कुछ चीज करके, वो 6 घंटे में, 8 घंटे में, 10 घंटे में, सबसे ज्यादा इम्यूनिटी होती है इसकी, वो वापस से रिकवर हो जाती है। लेकिन वो जो बोल के जो जाती है ना, तो दुनिया में अच्छा भी बुरा भी आपके शब्दों की सारी चीज याद रहती है। तो अकबर बोले कि भाई इसको तो प्रूव करना पड़ेगा आपको बीरबल। तो बीरबल बोले महाराज मुझे कुछ टाइम देना पड़ेगा आपको। बोले ठीक है, मैंने टाइम दिया आपको, 2 वीक का टाइम दिया। 2 वीक में आप इसको जो है मुझे आप प्रूव करके बताइए कि शब्दों में जो है इतनी ताकत होती है कि वो सबसे मजबूत होते हैं। तो 1 वीक जब हो गया तो क्योंकि राजकाज में इतना सारा काम चलता है तो भूल जाते हैं ना, याद नहीं रहती कोई चीज की क्या बात हुई थी। तो बहुत लाइट मोड में बात की थी अकबर ने बीरबल से, तो उसको अकबर भूल गए। बीरबल ने 6 दिन जब हो गया तो वीकेंड की जो बात थी तो उसमें अकबर से अनुरोध किया कि महाराज मैं आपकी बहन जो है, आपकी सिस्टर है, छोटी बहन है, उनको मैं अपने घर पे खाने पे बुलाना चाहता हूँ। तो बोला हाँ हाँ बुलाओ बुलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो बीरबल बहुत ही प्रेम, बहुत ही स्नेह से जो है अकबर की छोटी बहन को अपने यहाँ पे खाने खिलाने के लिए ले गए, खाने के ऊपर जो है लेके गए और उनको बहुत सारा खाना खिलाया, अच्छे अच्छे पकवान, मतलब जो जो चीज खिला सकते हैं बहुत दिल से बैठ के खिलाया। जब उनका पूरा पेट भर गया तो भी बीरबल बोल रहा है, दीदी ये थोड़ा सा खाओ इसको, ये बहुत ही जबरदस्त मिठाई बनी है, इसको खाओ। तो बोलती है बीरबल देखो मेरे पेट में बिल्कुल जगह नहीं है, मैंने पूरा खा लिया, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली एक राजा की, एक बादशाह की बहन है, तो उसकी भी अपनी एक डिग्निटी है ना, तो एक लेवल पे ही बात कर सकते हैं। हाँ कि बीरबल की बहुत बड़ी हैसियत है क्योंकि वजीर है उनके उनके सरकार में, लेकिन वो बोल रही है नहीं बीरबल मेरे पेट में बिल्कुल जी नहीं जगह है। बोले नहीं थोड़ा सा तो खाओ दीदी, थोड़ा सा तो, ये इतना प्रेम से बनाया है मेरी पत्नी और हमने मिलके जो है ना आपके लिए इसको, कि आप इसको तो थोड़ा चखो। बोले बीरबल मैं जितना खाना था उतना खा चुकी, मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो बीरबल एकदम से पास में आया उनके, अकबर की बहन के, और बोला क्यों नहीं खाती हो आप, तुम्हारे बाप का पैसा लगा है क्या, हमने पैसे लेके बनाया है इसको, क्यों नहीं खाती हो आप, खाओ ना, आपके बाप का थोड़ी पैसा लगा है। और ये सुनते ही अकबर की बहन एकदम से जो है आग बबूला हो गई, ये कौन सा तरीका है, ये क्या बात करने का तरीका है। और वो बिना कोई ताम झाम किए, इतना क्योंकि आसपास में ही राजप्रसाद में जगह होती थी, पैदल ही बीरबल के घर से जो है सीधी राजभवन पहुंची और अकबर को बोली कि बीरबल ने मेरा अपमान किया, इसको दंडित किया जाना चाहिए, इसको मृत्यु दंड दो आप। तो बीरबल, अकबर ने पूछा क्या बात हुई, तो बीरबल अकबर की बहन ने बताया कि देखो मेरे को खाना खाने बुलाया, फिर मैंने खाना खाया तो मैं जितना खा सकती थी उतना खाया, लेकिन फिर बोल रहा नहीं और खाओ और खाओ और खाओ। जब मैं नहीं खा रही हूँ तो बोल रहा तेरे बाप के थोड़ी पैसे लगे हैं, तुम्हारे बाप ने थोड़ी पैसे दिए हैं, हमने बनाया प्रेम से, थोड़ा खाओ ना दीदी, थोड़ा खाओ ना दीदी, ऐसे करके बात कर रहा है। बोला इतना बदतमीज ढंग से बात कर रहा है। तो अकबर को भी एकदम गुस्सा आ गया, ये कौन सा तरीका है बात करने का। तो अकबर ने बीरबल को बुलाया कि बीरबल तुम्हारे को जो है मृत्यु दंड मिलेगा अगर तुमने इस बात को ये नहीं बताया कि तुमने ऐसे क्यों बात की। बीरबल ने हाथ जोड़ के बोला महाराज आपने मुझे बोला था 7 दिन पहले कि आप सिद्ध करो कि शब्दों में वो सबसे बड़ी ज्यादा ताकत होती है, शब्द सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। हमने प्रेम से खाना बनाया, हमने प्रेम से खाना खिलाया, मैंने प्रेम से ही बोला, मैंने ये बोला आपके बाप के थोड़ी पैसे लगे, लेकिन इसके बावजूद भी कोई गुस्ताखी नहीं की मैंने शब्द ऐसे चुने जिन शब्दों ने आपकी बहन को आग बबूला किया, आपको जो है गुस्से में ला दिया, आप मेरे को मरने मारने की लेवल तक पे आ गए। अकबर बोले भाई वास्तव में ये बात सही है तुम्हारी, अगर तुमने एग्जाम्पल देने के लिए इस चीज को लिया है मुझे सिद्ध करने के लिए, तो मुझे समझ में आ गया कि शब्दों में जो है वो सबसे बड़ी ताकत होती है। दोस्तों शब्द जो है ना हमारे, कुछ लोग बोलते हैं मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, ऊपर वाला बोलेगा तो तू नहीं चलेगा, आपके शब्दों की ताकत को पहचान रहा है। एक आदमी बोल रहा है कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, मेरी टीम बहुत अच्छी है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग जो है सब लोग जो सक्सेस होंगे इस बिजनेस में, ऊपर वाला बोलता है तथास्तु। एक व्यक्ति बोलता है मैं अपने डायरी में लिखा है मैं इस तारीख में इस बिजनेस में एमरल्ड डायरेक्टर बनूंगा, बनूंगी, डायमंड बनूंगा, डबल डायमंड बनूंगा, अपनी टीम में ये अचीव करेंगे, इस लेवल में जाएंगे। ऊपर वाला बोलता है तथास्तु, बनेंगे, करेंगे, क्योंकि शब्दों की जो ताकत है ना वो बहुत मजबूत है। लेकिन शब्दों को क्या है कि बांध के रखना पड़ता है हमको साथ में, किसके साथ, नोट करना पड़ता है बोलने की शक्ति को, किसके साथ, हमारे ड्रीम्स के साथ। अब ये किताब मैं तो लगातार पढ़ रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इसमें कल भी मैं पढ़ रहा था कुछ, तो क्या चीज बोलते हैं, क्या किताब है, बड़ी सोच का बड़ा साथी है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। एक एक पन्ना मैं आपसे आपके साथ पढ़ना चाहता हूं इसका, इसी से रिलेटेड है कहीं न कहीं उस चीज के ऊपर। तो बोलता है विचार आपकी सोच के फल है, विचार जो है ना आपकी सोच के फल है, आउटपुट है, परंतु इनका दोहन करना पड़ता है और तभी उनका मूल्य होता है। अगर विचारों का आप दोहन नहीं करेंगे, विचारों को से आप अगर कुछ आउटपुट नहीं निकालेंगे ना तो उसका कुछ मूल्य नहीं है। विचार लिखे हुए पड़े हैं, किताबों में लिखे पड़े हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अगर उसका आउटपुट अगर नहीं निकालेंगे तो नहीं होगा। एक साल में पेड़ से, हर पेड़ से इतना फल गिरता है कि अगर सभी बीज उग जाएं तो एक अच्छा खासा जंगल तैयार हो जाए। तो बार बार इस जूम में भी बात होती है, सेमिनार में हर जगह विचारों की तो बात होती है बहुत सारे, लेकिन सारे इंप्लीमेंट नहीं होते हैं। एक साल में पेड़ से इतने फल गिरता है कि अगर सभी बीज उग जाएं तो एक अच्छा खासा जंगल तैयार हो जाए।
परंतु इन बीजों में से शायद एक या दो बीज ही उग पाते हैं। वो बीज आप हैं क्या? सोचिएगा आज की युग में, अपनी डायरी में लिखिएगा कि वो बीज मैं ही हूं जो जो उग रहा हूं, आगे तेजी से बढ़ रहा हूं। इनमें से शायद एक दो बीज उग पाते हैं, ज्यादातर बीज गिलहरियां खा जाती हैं। हमारे आसपास में बहुत सारी गिलहरियां हैं ना, वो हमारे हमारे उगने से पहले हमको खा जाती हैं। और पेड़ के नीचे की जमीन इतनी सख्त होती है कि बचे हुए बीज उस पर उग ही नहीं पाते हैं। कितनी जबरदस्त बात है। ऐसे विचारों के साथ होता है, केवल कुछ ही विचारों के फल मिल पाते हैं। विचार बहुत जल्दी नष्ट होने वाले बीज हैं। अगर हम रखवाली नहीं करें तो गिलहरियां, नकारात्मक रूप से सोचने वाले लोग हमारे ज्यादातर विचारों को नष्ट कर देंगे। विचार जब पैदा होते हैं तभी से उनकी खास देखभाल करनी होती है, और तब तक करनी होती है जब तक कि वे बड़े ना हो जाएं, इनमें फल न लगने लगे। अपने विचारों के दोहन के लिए और उन्हें विकसित करने के लिए इन 3 तरीकों का प्रयोग करें। लेखक बोलता है 3 चीजें करें अपनी जिंदगी में, आप भी करें, इस चीज को लिखें अपने साथ। विचारों को बच निकलने का मौका ना दें। पहली चीज है कि जब भी आपको कोई अच्छा विचार सुनने में, जानने में मिलता है, उसको बच निकलने का मौका नहीं दें, उन्हें लिख लें। इसलिए हम बोलते हैं बार बार डायरी में अपने ड्रीम लिखो, और अच्छी बात भी लिखो, जो भी बात होती है पेन डायरी के साथ उन्हें लिख लें। हर दिन आपके दिमाग में बहुत से अच्छे विचार आते हैं, परंतु वे जल्दी ही मर जाते हैं क्योंकि आपने उन्हें कागज पर नहीं लिखा है, और आप कुछ समय बाद उन्हें भूल जाते हैं। नए विचारों की पहरेदारी के लिए याददाश्त एक कमजोर चौकीदार है। हमारी याददाश्त में इतने विचार याद नहीं रहते हैं, भूल जाते हैं। हमको एक बात याद आती है, एक चीज होती है, तो उसका तरीका क्या है कि हम डायरी में लिखें, कागज में लिखें उसको। नए विचारों की पहरेदारी के लिए याददाश्त एक कमजोर चौकीदार है। अपने पास नोटबुक या डायरी रखें हर वक्त। जब भी आपके दिमाग में कोई अच्छा विचार आए उसे लिख लें। यात्रा करने का शौकीन मेरा दोस्त अपने साथ एक डायरी रखता है जिस पर वह अपने विचार तत्काल लिख लेता है। रचनात्मक मस्तिष्क वाले मनुष्य जानते हैं कि अच्छा विचार कभी भी कहीं भी आ सकता है। विचारों को निकल भागने का मौका ना दें कभी भी जिंदगी में, अन्यथा आप अपने विचार के फल नष्ट कर लेंगे। उन्हें बांध कर रखें, तो विचारों को बांध कर रखें, पहली चीज। दूसरी चीज है, इसके बाद अपने विचारों का अवलोकन करें। उन विचारों को एक फाइल में लगा लें। यह फाइल बड़ी हो सकती है, डायरी में लिखने, या फिर छोटी फाइल में भी काम चल सकता है, परंतु फाइल जरूर बनाएं। और इसके बाद आप अपने विचारों का नियमित रूप से विश्लेषण करें। जब आप इन विचारों का अवलोकन करेंगे तो आपको कुछ विचार बेकार या महत्वहीन लगेंगे, उन्हें बाहर निकाल लें, परंतु जब तक आपकी कोई विचार दमदार लगता है उसे अपने पास बनाए रखें। 2 चीज, मतलब विश्लेषण करना है विचार का जब भी आता है। हमने डायरी में लिखा, सारे घास फूस को आगे लेके नहीं बढ़ना है, हमको उसका एनालिसिस करना है। तीसरा, अपने विचारों को विकसित करें, इसे फलने फूलने दें, इसके बारे में सोचते रहें, इस विचार को इससे संबद्ध विचारों के साथ बांध दें। अपने विचार से संबंधित सामग्री पढ़ते रहें, सभी पहलुओं की जांच कर लें, फिर जब समय आए तो काम में जुट जाएं, अपने काम और भविष्य को सुधारने के लिए इनका उपयोग करें। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर जो है विचार हमारी जिंदगी में जो है बहुत बड़ा असर डालता है इस चीज का। तो बहुत सारे साथियों ने जो अपने हैंड रेज किए हैं। आज का जो है हमारा सवाल और जवाब का सेशन है, तो मैं शुरू यहाँ पे करता हूँ। 8-10 साथियों ने यहाँ पे हैंड रेज किए हैं, तो कृष्णा मकाल से शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो है आपको मौका देते हैं। कृष्णा जी, आप आइए, अपनी बात रखिए। क्या आप? माय मॉर्निंग सर। जी सर। हमारा एक सवाल है सर, जो हमारा जो टीम है वो टीम से नया ज्वाइनिंग क्या करने से ज्यादा निकाले, और इसके लिए क्या ऑफर देंगे, क्या कुछ टारगेट देंगे, क्या बैठ के बात करेंगे, क्या करने से टीम से नया ज्वाइनिंग ज्यादा निकल सकता है सर, टीम से सर? ऑफर की ज्वाइनिंग सर कभी स्थायी नहीं होती है। ऑफर की ज्वाइनिंग जो है ना, वो आपको स्टेबल नहीं करती है कभी भी। प्लान ही देखिए, जब आपका ड्रीम जिंदा है तो मैं हमेशा कुछ लोगों से मैं हमेशा बात करता हूँ और बोलता हूँ, भाई आप मुझे एक बात बता दीजिए कि मैं ऐसे आदमी से मिलना चाहता हूँ जिसने लास्ट 365 डेज में रोजाना एक प्लान दिखाया है। तो टीम वो करती है सर जो हम करते हैं, टीम वो नहीं करती जो हम बोलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है सर? हमें रोजाना एक प्लान दिखा के आना है खुद को। पहला चीज, कोई ऑफर की जरूरत नहीं, कोई चीज की जरूरत नहीं है। शुरुआत हमें कहां से करनी है? हमें खुद करनी है, हमें खुद प्लान दिखाना है। फिर हमारी टीम में वो व्यक्ति ढूंढना है जो अपने ड्रीम्स को लेके करना चाहते हैं, क्योंकि हम किसी को फोर्सफुल, किसी को ऑफर से, ये जो है ना, इनको आप अस्थायी रूप में कर सकते हैं, 1 महीना कर सकते हैं, 15 दिन कर सकते हैं, क्योंकि बाहरी जो मोटिवेशन है ना
वो बहुत बहुत क्षणिक होता है, वो आता है, वो चला भी जाता है। अंदर का मोटिवेशन कहाँ से आता है? अंदर का मोटिवेशन आता है ड्रीम से। सबसे पहले हमको हमारे लोगों के ड्रीम फाइंड आउट करने होते हैं, इसके ऊपर ताकत लगानी होती है, टाइम भी लगता है। बहुत सारे लोगों के ड्रीम होते हैं, बहुत सारे लोगों के नहीं होते हैं, उनको भी हमको जो है ड्रीम्स दिखाते हैं तो धीरे धीरे बनाते हैं। ड्रीम को अगर हम हस्बैंड वाइफ के साथ बनाएंगे तो और ज्यादा बेटर काम करेगा, अगर पूरी फैमिली के साथ बनाएंगे तो और बेटर काम करेगा उसमें। तो पहला चीज तो यह है कि रोज लोग प्लान दिखाएं, इसके लिए हमको ड्रीम्स जो है फाइंड आउट करने पड़ेंगे लोगों के, और ड्रीम रियल होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए। फिर दूसरी चीज यह है कि गिनती के ड्रीम नहीं होने चाहिए। मैं आपको एक पैरामीट्री दे देता हूं, इस चीज के ऊपर आप काम करना शुरू करिए। सब लोगों से बोल रहा हूं, कृष्णा जी ने सवाल पूछा, आप 15 ड्रीम की लिस्ट बनाइए अपनी जिंदगी में, 15 से छोटी मत बनाइए आप, कि मेरी जिंदगी के 15 ड्रीम्स हैं, या वो काम जो मैं चाहता तो हूं लेकिन मुझे लगता नहीं है मैं अपनी जिंदगी में कभी अचीव कर पाऊंगा, उसको भी लिखिए आप। ये भी आपका ड्रीम ही है, एक्चुअल ड्रीम है लेकिन डर लग रहा है उसको लिखने में, उसको भी लिखिए। 15 ड्रीम लिखिए, छोटे से लेके बड़े, और इसमें पहले 5 को जो है तारीख दीजिए, है ना, गोल के लिए। पहले 5 को कम से कम, आप 15 को नहीं दे सकते, आप पहले 5 को दीजिए। इसको अचीव करने की जो तारीख होगी ना आपकी, वो मैक्सिमम 1 साल से नीचे होगी पहले 5। इस चीज को ध्यान रखिए। ऐसा अगर हम कर पाए तो हमारी टीम के ये लोग प्लान दिखाने के लिए जाएंगे। इसके बाद दूसरी चीज क्या करनी है, प्लान दिखाने से पहले प्लान आना चाहिए। तो प्लानर मीट हमारी टीम में कितनी हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एनवायरमेंट कैसा दे रहे हैं। आप जो चीज देंगे टीम वही करेगी। आप बोलेंगे डायमंड क्लब करो, डायमंड क्लब करेगी, स्मार्ट कंज्यूमर करो, स्मार्ट कंज्यूमर करेगी, रीपरचेज करो, रीपरचेज करेंगे, दुबई जाओ, दुबई जाने के लिए काम करेंगे, ज्वाइनिंग के लिए काम करो, ज्वाइनिंग के लिए। जब भी हम किसी को प्लान दिखाएंगे, हमने जब प्लान दिखाया तो बहुत सिंपली आप डायमंड क्लब से भी दिखा सकते हो, लेकिन एक सिंपल कंपनी का लगातार एक ऑफर चल रहा है, फिलहाल तो चल रहा है, तो उसके ऊपर की न्यू ज्वाइनिंग से कोई व्यक्ति करता है, उससे हम बिजनेस से रिलेटेड बात करेंगे। लेकिन ये स्टेप 2 हो गया, आप जो पूछ रहे हैं उससे अगला स्टेप हो गया। लेकिन इससे आपकी टीम में और ज्वाइनिंग बढ़ेंगे कि भाई आप यहाँ पे कम से कम 2000 बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइन कर रहे हैं, और इसको नेक्स्ट मंथ में मेंटेन रखते हैं, अपने जैसा एक व्यक्ति और लाते हैं आप नेक्स्ट मंथ तक, तो आपको एक 600 रुपये सारी चीज के अलावा एक कैशबैक देती है कंपनी। नए आदमी को ना करोड़ों की बात नहीं होती, लाखों की बात नहीं होती, उसको 600 रुपया भी उसके लिए जो है ना, उसको ये जो ऑफर है, ये उस रास्ते पे ले जाने के लिए। किस रास्ते पे? जहां पे हम बोलते हैं लिस्ट बिल्डिंग, है ना। लिस्ट बिल्डिंग तभी होगी जब ड्रीम बिल्डिंग होगा। ड्रीम बिल्डिंग के बिना लिस्ट बिल्डिंग नहीं होती है। तो 4 बेसिक से पहले जो है ना 5वां बेसिक है, जिसको बोलते हैं ड्रीम। और ड्रीम्स पे निकालने में बहुत सारे लोग सबसे कम टाइम लगाते हैं अपनी जिंदगी का, जबकि इसके ऊपर सबसे ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत है। तो ये 1 से 2 होगा। अच्छा, कुछ लोग जो है, जैसे कृष्णा जी ने बोला मेरी टीम में है ना, आप तो डायमंड बनने जा रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे साहब 15 लोग मेरी टीम में रोजाना प्लान दिखाने निकले, 20 लोग नहीं निकलेंगे। 1 का 2 होगा, 2 का 4 होगा। तो हर महीने, चेतन जी इसके ऊपर बहुत अच्छी बात करते हैं, 1 महीने में आप अपने जैसा एक डुप्लीकेशन लगातार प्लान दिखाने वाला, आप जैसा तो बनने में टाइम लगेगा, लेकिन क्या एक व्यक्ति हम खड़ा कर सकते हैं क्या जो रेगुलर प्लान दिखाए? ये प्लान कब होगा? जब हम हमारे विचार को, हमारे ड्रीम को हम हमारे फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको हम टाइम की रस्सी से बांध देंगे, टाइम की डोरी से। क्योंकि ड्रीम्स को ना बार बार देखना बहुत जरूरी है। ये रबड़ की तरह छोटे हो जाते हैं, फिर वापस रबड़ को जैसे खींचते हैं तो खींच जाता है। इनको रोज याद करना पड़ता है। तो एक जो है इसके ऊपर, जिसको बोलते हैं संकल्प, वो संकल्प क्या लेना? जो लीडर है, जैसे कृष्णा जी ने पूछा, ऐसे ही मैं सारे लोगों से बोलना चाहता हूं कि आप अपनी डायरी में आज के दिन लिख सकते हैं कि नेक्स्ट 365 डेज, 65 दिन भी आप हटा दो एक बार, है ना, एक बार 65 दिन हटा दो। आप क्या अपने आप से, मैं बोलूंगा अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तो आपको नहीं हटाना चाहिए। दिवाली आए, दुर्गा पूजा आए, दशहरा आए, क्रिसमस आए, ईद आए, कुछ भी आए, उस वक्त ज्यादा लोग होते हैं हमारे इर्द गिर्द, उस दिन भी हम एक प्लान पे चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट 365 डेज में 365 प्लान मैं खुद दिखा सकता हूं क्या? और इसको जब टीम देखती है ना, तो टीम में ऑटोमेटिक जो है लोग आते हैं। लगातार उनके ड्रीम फाइंड आउट करिए, उसके ऊपर बात करिए, लगातार इस चीज के ऊपर करना। अपने ड्रीम्स को लिख के रखिए, बोर्ड पे लगाइए।
डायरी में ही नहीं, रोज पढ़िए इस चीज को। इसका और कोई प्रक्रिया है नहीं। आप बोलो कि ये घड़ी दे देंगे, हम ये दे देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। कंपनी भी बीच बीच में बहुत सारे ऑफर देती रहती है अपना अपना चला के, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल टीम किसकी है? जो टीम में ड्रीम्स लिखे हुए हैं और उसको लेके प्लान दिखाते हैं। भूख अंदर से लगने दो, बाहर से मत लगाओ। जबरदस्ती की भूख जो है ना, वो इनडाइजेशन कर देगी, वो और प्रॉब्लम कर देगी। भूख जब अंदर से होगी ना तो आपको, क्योंकि इस बिजनेस में हमारा कोई बॉस नहीं है, है? हम लोग सुबह रोज बात करते हैं, लेकिन मैं तो किसी का बॉस नहीं हूँ। हम लोग तो साथी हैं एक दूसरे के ना। तो यहाँ पे आपको आदेश कौन दे? यहाँ पर आदेश आपका सपना देगा, आपका ड्रीम देगा, आपका गोल देगा। तो गोल जितना मजबूत होगा ना उतना दिखाएंगे। अच्छा, दूसरा पार्ट ये है कि आपके इस सवाल का, कि जब तक न्यू एक्टिवेशन नहीं होगा तब तक आपके गोल्स अचीव नहीं हो सकते। बेचकर इस बिजनेस में आप आगे नहीं बढ़ सकते। इस बिजनेस में जितने भी दुनिया में जितने भी करोड़पति, अरबपति, मैं तो बोलता हूं कुछ लाखों के भी मालिक हैं, उनकी भी देखिए एक टीम मिलेगी। कोई भी वो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं तो भी वहां पे एक टीम मिलेगी उनकी, कि अकेले व्यक्ति ने जो है लाखों रुपया नहीं कमा रहे हैं। आप जॉब वाले को छोड़ दीजिए, जॉब के अलावा जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं दुनिया में, और जॉब वाला तो बड़ा नहीं कमा रहा है, हो सकता है कोई 50,000 कमा रहा है, कोई लाख, मतलब आधा % से भी कम लोग, जॉब वालों का आधा % में ऐसे हैं जो लाख से ऊपर कमाते हैं। बाकी सबका एवरेज क्या है? 10,000 से लेके 20,000 के स्लैब में ही 90% लोग जो है जॉब वालों का रेंज खत्म हो जाती है। तो ये लाखों रुपया कौन बनाते हैं? ये बनाते हैं बिजनेस वाले। बिजनेस वाले, जब भी आप कोई व्यक्ति देखेंगे उसकी टीम होगी, चाहे वो गाड़ियों का बिजनेस करता हो, चाहे होटल का बिजनेस करता हो, चाहे वो फूड चेन का बिजनेस, कुछ भी चीज कर रहे हैं, टीम है वहां पे। वो टीम कमा के दे रही है उनको, लेकिन वहां पे बहुत सारा पैसा चाहिए। यहां पर बिना पैसे या बहुत कम आप इन्वेस्टमेंट के साथ अगर किसी बिजनेस में कर सकते हैं, उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, उसका नाम है माई रिचार्ज। उसमें एक ही चीज है कि हमारे ऊपर बॉस नहीं होता। बॉस नहीं है तो हमारे ड्रीम को हमको नोड करके रखना, पकड़ के रखना, खींचना है उसको, रोजाना उसको देखना है। यही चीज है। और खुद से ये करें कि मैं रोजाना एक प्लान दिखाऊंगा। आप दिखाना शुरू करिए, लगातार आपकी टीम करेगी। एक व्यक्ति को डुप्लीकेट करिए 30 दिन में, बहुत सारों को लगाने की जरूरत नहीं है। फिर वो लेकिन लगातार दिखाए उस व्यक्ति को ना, हमको देखना है इसको एग्जामिन करके कि ये वो व्यक्ति है जो अपने सपने के लिए भागना चाहता है, उसके साथ करें। दूसरा चीज ये है कि हम लोग, मैं एक जो है करेक्शन करना चाहता हूं। बहुत बार हम लोग एक एसोसिएट की जब बात करते हैं तो उससे बहुत नजदीक हो जाते हैं हम लोग, तो फिर हम उसको अपना वॉलेट भी दिखाते हैं, अपनी लेग रिपोर्ट भी दिखाते हैं, बहुत सारी चर्चाएं भी करते हैं, डाउनलाइन की भी चर्चा करते हैं, उससे अपलाइन की भी चर्चा करते हैं, कंपनी के बारे में भी चर्चाएं करते हैं। ये पांचों ही चीजें नहीं करनी है उनके साथ। ना अपना वॉलेट दिखाना है, ना अपना डाउनलाइन रिपोर्ट दिखानी है, ना अपनी टीम के बारे में उनसे चर्चा करनी है, ना अपलाइन के बारे में चर्चा करनी है, ना कंपनी के बारे में चर्चा करनी है। चर्चा कुछ और करनी है, नहीं तो आप जो है गपबाजी का अड्डा बन जाएगा, दो दोस्त बन जाएंगे करके ना, तो वो उसके अंदर स्पॉइल हो जाएगी। इसका यही जवाब है कृष्णा जी। सर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक सवाल है सर इसके ऊपर ही, जो जी सेल्फ जो प्रोग्राम करेंगे, प्लान दिखाएंगे, वो टीम को कैसे पता चलेगा? वो फोटो खींचकर व्हाट्सएप में डालने से ना टीम को पता चलता है सर। फोटो वोटो डालने की बहुत जरूरत भी नहीं होती है, टीम को सब पता चलता है सर। टीम में जब भी कोई आदमी बोलता है करके, जैसे मेरे पास फोन आते हैं, लोगों के आते हैं। एक व्यक्ति का कल शाम को फोन आया, वो बोले सर फाइल्स के लिए क्या दें? मैं बोला आप जूम में नहीं आते हैं क्या? बोला सर मैं जूम में नहीं आता हूं। तो मैंने उनको बताया कि 40 या 41 वीडियो हैं हमारे टेस्टिमोनियल के, आप यूट्यूब पे जाके देखिए उसको। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब आदमी को जब लगता है ना कृष्णा जी कहाँ हो फील्ड में, कृष्णा जी कहाँ हो फील्ड में, प्लान दिखा रहा हूँ, प्लान दिखा रहा हूँ, प्लान दिखा रहा हूँ, कोई न कोई आपको देख रहा है सर। और कोई भी नहीं देख रहा, जिन नयों को आप दिखा रहे हैं ना, वही आपकी टीम है। फिर अगर आपकी टीम में कोई आपको नहीं देख रहा है ना, तो आप इस भ्रम में मत रहो कि अभी तक जो ज्वाइन किया है वो आपकी टीम है। क्योंकि आपको लीडर को अगर टीम फॉलो नहीं कर रही है ना, तो हमें एक नई ही टीम खड़ी करनी पड़ेगी जो हमें फॉलो करे। दिख जाएंगे आप, दिखाने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप में ये रुपया लेके, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, ये भी 2,000 रुपया ये ऐसे करके, ये क्या क्या कर रहे हैं? अरे हम करियर के लिए बात कर रहे हैं, हम लोग करोड़ों की बात कर रहे हैं, क्या 2,000 1,000 यहाँ प्लान वो करके। हाँ, आप अपना कुछ जो है अपना शॉर्ट ग्रुप है, कुछ आपने बना रखा है कि हम सारे लोग डालेंगे आपस में, है ना, 5 लोगों का ग्रुप बनाया 10 का, तो वो एक अलग चीज है कि भाई देखो मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ये किया।
तो वो सारे लोग देख सकते, लेकिन बड़े बड़े ग्रुप्स में इसको डालने का मेरे आइडिया से कुछ औचित्य नहीं है, उसका कुछ मतलब। राइट सर? ओके सर, बहुत ओके बढ़िया सर। तो सारे सर। साथियों को ये चीज समझ में आई होगी, ऑलरेडी हमारे साथी कर रहे हैं, इसीलिए हर महीने ज्वाइनिंग बढ़ रही है। तो आपको भी इसी के ऊपर जो है काम करने की जरूरत है। मैं नेक्स्ट एक बार जो है यहाँ पर बबीता मैडम को बुलाएंगे। बबीता राठी मैडम आइए एक बार। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर जी। जी मैम। लोगों से आपने अभी जैसे कहा नए लोगों से बात करें, नए लोगों से जिससे भी बात करते हैं, बिजनेस प्लान दिखाते हैं, उन लोगों के पास से एक ही सवाल आता है कि कैश ऑन डिलीवरी है क्या? प्रोडक्ट हम ऑनलाइन जो मंगवाएंगे तो उसमें मुझे कैश ऑन डिलीवरी चाहिए, तो क्या ये हो सकता है अपने? कितने लोगों का ये सवाल आता है मैडम? मेरे पास करीबन अभी तक 5 से 10 जन का यही सवाल है। मतलब 10 जनों का जवाब है ना? उस हाँ। 10 से आगे भी लोग हैं हमारे यहाँ पर। देखो, जिस व्यक्ति को रिक्वायरमेंट होती है ना, सीओडी जो होती है ना, सीओडी तो सब कंपनियां भी धीरे धीरे हटा रही हैं इंडिया में। ई कॉमर्स कंपनियों में भी सीओडी ऑलमोस्ट अगले 2 से बल्कि 2 साल भी नहीं होगा, 2025 तक 10% से भी कम सीओडी रह जाएगा। सब कंपनियों ने ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया है कि वो पहले से यूपीआई जब से आ गया है उसके बाद से ये सीओडी का सिस्टम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अच्छा, इसमें जो है एक चीज जो है वो हमारे सामने क्या आता है कि साहब सब ही बोलते हैं। तो ये सब में जब मैं आपसे बात कर रहा था, आप बोल रहे हैं कि 8-10 लोग, तो 8-10 लोग सब नहीं है ना मैडम। देश में कितने लोग हैं हमारे यहाँ? 1.5 अरब लोग। तो हमें 1.5 अरब चाहिए नहीं। तो बहुत सारे लोगों के ना बहुत सारे एक्सक्यूज की चीजें होती है, बहुत प्रेम से वो आपको बात देते हैं कि ये चीज है क्या। जब आप बोलेंगे ना सीओडी भी है, तो बोलेंगे कि ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि 24 घंटे में डिलीवर हो जाए। मतलब बहुत सारे लोगों के पास, कुछ लोगों के पास बहुत सारे सवाल हैं, तो उसके ट्रैप में नहीं जाना है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप किस चीज के लिए काम कर रहे हैं। आप डॉक्टर बन के उधर काम कर रहे हैं कि आप करियर के लिए काम कर रहे हैं, आप किस चीज के किस काम कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम बीमार शरीर ढूंढेंगे ना, तो ये वाले सवाल, दूसरे कई सवाल आते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें ये ध्यान रखना है कि सबका मतलब क्या है ना। सबका मतलब 10 नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं। तो हमें थोड़ा और आगे उनका सवाल ठीक है कि सीओडी है कि नहीं, तो इस सिस्टम पे भी हो सकता है कंपनी ऐसा कुछ सिस्टम डेवलप कर दे आने वाले टाइम पे कि साहब ये फैसिलिटी आपको लोकल में अवेलेबल हो जाएगी। फिलहाल के टाइम पे नहीं है। फिलहाल के टाइम पे कंपनी ऑल ओवर इंडिया में जहां पे भी आप रहते हैं, पिन कोड है, वहां पर ऑनलाइन डिलीवरी आपको कराती है। हाँ, अगर किसी को ये डर है कि साहब मैं पैसा दूंगा मेरा प्रोडक्ट आएगा, इसको तो आप इंश्योर कर सकते हैं ना मैडम। हमारे यहाँ B2C नहीं है ना, कस्टमर ये नहीं है ना, हमारे यहाँ तो बिजनेस पार्टनर हम लोग बना रहे हैं ना। तो उसको आप इंश्योर कब करेंगे? ये सवाल कब आता है? जब हमारा रेपो ठीक से नहीं बैठता। उस रेपो को हमें थोड़ा और बिठाना है और थोड़ा उसको बढ़ाना। उसको अगर हम थोड़ा नजदीक लेके जाएंगे ना और हमारा रिलेशनशिप बेटर होगा, तो फिर ये सवाल नहीं होगा। लेकिन मैं आपके सवाल को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। इन फ्यूचर में अगर कभी होगा, अगर पॉसिबल होगा, तो जरूर इस चीज को करेंगे। लेकिन वो 10 लोग सब लोग नहीं है ना, हमको और आगे भी इस चीज को दिखाना। और वो मना भी नहीं कर रहे हैं, तो सीओडी का बोल रहे हैं, तो आपके पास भी आप थोड़ा सा सोप, ये क्विक शॉप जैसा कुछ ले लें, तो आपसे मिलने वाले जो है दूर में जो है, उसके लिए तो अभी जो हमारे यहाँ है ऑनलाइन का वही सिस्टम है कि पहले इसको पे करके ही कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सजन लाल जी आइए एक बार। माय चार्ज मॉर्निंग सर। जी सर। सर जैसे कोई 2020 ज्वाइन कर रहा है और इसी महीने में किसी को ज्वाइन करा दिया और जी अगले महीने खुद ले रहा है, क्या ये न्यू ज्वाइनिंग ऑफर में 600 रुपए इसको मिल सकता है? बिल्कुल, जैसे खुद ने ज्वाइन किया 2020 से, उसी दिन हाँ। खुद के ज्वाइनिंग के बाद ही 2000 बिजनेस वॉल्यूम से एक साथी को और ज्वाइन करा दिया, और अगले महीने 1 से 20 तारीख तक उन्होंने खुद ने 2000 बिजनेस वॉल्यूम से और परचेज कर लिया, तो उनको एंड ऑफ द मंथ पे आउट के बाद जो है 600 रुपया कैशबैक आ जाएगा सर। इस सर चीज दूसरा, जी हाँ सर दूसरा सवाल है कि जैसे प्लान बुक तो एक ही है हाँ और जी हम उसी प्लान बुक से सभी को प्लान दिखाते हैं। जी अब जैसे अधिकतर लोग होते हैं 10-20 हजार रुपए की इनकम करने वाले होते हैं, जब उनको दिखाते हैं कि 32 लाख 35 लाख इनकम भी हमारे टीम में ऐसे लीडर ले रहे हैं, तो उनको हाँ है।
तो सर उनके लिए क्या करें, प्लान में कुछ हम चेंज करें कि वही प्लान सभी को देखें? उनसे सबसे पहले आप पूछो कि सर आपको 10,000 रुपए इस बिजनेस से आए तो आप उसका क्या करोगे। सबसे पहले जब उसका जवाब दे देते हैं तो दूसरा सवाल पूछो कि आपको अगर 20,000 रुपए आए तो क्या करोगे आप। और इसका भी अगर उनके पास जवाब है तो पूछो कि 30,000 आए तो आप क्या करोगे। और इसका भी जवाब है तो पूछो कि आपको 40,000 आए तो जंप नहीं करना है सर, लाख पे नहीं जाना, 40, 50, 60 ऐसे पूछते हो आप। देखो कि इस आदमी की कैपेसिटी कितनी है ना, उसके ऊपर जाना। ये मतलब क्वालिटी, बिना क्वालिटी के लोगों में मैं बात नहीं करता हूँ। यहाँ पे अगर हम ऐसे फिल्टर करते तो आज जो है आसिक अंसारी यहाँ पर क्राउन डायरेक्टर ना होता ना, ऑटो चलाता था ना। यहाँ पे प्रेम लिंबू जो है 5 लाख की इनकम पे ना होता, ऑटो चलाता था। तो इसलिए हम फिल्टर में इस चीज में ना जाए कि साहब ये आदमी तो सोच नहीं पा रहा आज 20,000 से ऊपर, और हम बात कर रहे हैं लाखों की। दोनों ही बातें ठीक हैं, लेकिन हमें उसके स्तर को एक बार उसको बढ़ाना है। कहाँ पे उसके उस ड्रीम को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। वो कहाँ से निकलेगा, जब वो इनकम आ रही है उसको कि आप करोगे क्या इस पैसे का, उससे धीरे 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 बड़ा होता है सर। अगर आप अपनी जिंदगी का एनालिसिस करेंगे या मैं मेरी जिंदगी का, सभी का ही, हम लोग आज से 10 साल पहले जैसा सोचते थे ना, हम देखेंगे कि हम क्या बेवकूफियां भरी बात करते थे, है ना। तो ये बदलता रहता है लगातार। तो बुक चेंज करने की जरूरत नहीं है सर। उस पोर्शन से पहले आप अपना सवाल चेंज कर लें, है ना। उस सवाल को सीधा वहां पे रख लें। बाकी तो आप दिखा रहे हैं, बोले यहाँ लाखों भी कमाते हैं, उस बुक में कम वाले भी हैं सर। उसमें 30,000, 40,000 वाले ऐसे भी लोग मिलेंगे जो 30,000 कमाते हैं, 40,000 कमाते हैं। नए लोग हैं, एकदम नए लोगों का भी पिक्चर होता है बहुत बार। तो उसका यही तरीका। लेकिन खुद को अगर आप छोटा रखेंगे ना तो फिर छोटे अचीव होंगे। थोड़ा हमको बड़ा, इस बिजनेस में हम लोग आते क्यों हैं, हम आते हैं कि 50 साल वाली चीज 5 साल में पूरी, इसलिए तो इस बिजनेस में हम लोग आते हैं। नहीं तो फिर जरूरत नहीं है, कोई जॉब कर लें, कहीं पर कोई नौकरी कर लें। औकात से बड़ा, फारिया जी बोलते हैं ना, औकात से बड़ा सोचने वाला। तो वो औकात से बड़ा सोचने का हमको भी सोचना है, सामने वाले को भी सोचने के लिए मजबूर करना है। लेकिन डे वन नहीं सोचेगा, जब हम प्लान शो कर रहे हैं तब नहीं सोचेंगे। आपकी सजनलाल जी बात 100% सही है। तो उसके लिए हमको टुकड़ों में उसके ड्रीम को ना फाइंड आउट करना, बिना उसको बताए कि आपके सपने पे मैं बात कर रहा हूँ कि 10,000 आए तो क्या करेंगे, 20,000 आए तो क्या क्या लेंगे, आप क्या लेंगे उस पैसे से, क्या करेंगे क्या उस पैसे से। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता उस पैसे से मैं क्या करूँ। ये इसको जब हम फाइंड आउट करना शुरू करेंगे ना, इसलिए मैं बोलता हूँ 15 ड्रीम के टुकड़े करो उसको, तो वो होता है थोड़ा बिजनेस में आगे आ जाते हैं। लेकिन किताब तो नहीं बदलनी है, किताब तो वो साइंटिफिक ढंग से सोच के ही उसको बनाया गया है, प्लानर बुक को। उत्तर प्रदेश में जहां पे आप रहते हो सर, इंडिया के बहुत सारे धनी, मतलब थोड़े नहीं बहुत सारे, आप 24 करोड़ लोग हैं, लेकिन उसके अलावा पैसे वाले भी लोग सबसे ज्यादा में अगर गणना करें, मतलब पॉपुलेशन वाइज, तो उत्तर प्रदेश में ही रहती है सर। मतलब ऐसे बिना संख्या के देखें तो महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, गुजरात में सबसे रिचेस्ट लोग रहते हैं। लेकिन जब ये संख्या में जब बात आती है ना, तो सबसे ज्यादा धनवान लोगों की जो संख्या है वो भी उत्तर प्रदेश से ही आती है सर। तो इसलिए और धनवान लोगों के ड्रीम्स और बड़े होते हैं, और ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, पैसे के साथ स्वास्थ्य भी कमाना चाहते हैं। तो प्लान बुक में चेंज करने की जरूरत नहीं है, प्लान बुक को अपने किस्म से टुकड़े करने की जरूरत है, उसी प्लान बुक को दिखाते हुए। राइट सर, ये चीज है। अच्छा, दूसरा है जिसका बिल्कुल भी ड्रीम है ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाने की जरूरत है ना। बहुत ज्यादा अगर टाइम आप अपना लगाएंगे ना तो आप अपने ड्रीम से पीछे चले जाएंगे। तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। तो प्लान दिखाते वक्त कितनी देर में मुझे यहां से निकल जाना, इस चीज को ध्यान रखना है। कितनी देर तक मुझे बैठना, कितनी देर तक। मैं हमेशा बोलता हूं कि सामने वाला आपको सोचने लगे कि ये कब जाएगा, उससे पहले चले जाओ आप उनके घर पे। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। राइट सर, थैंक यू सर। चलिए बहुत बढ़िया सर। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बार विद्युत साहा आइए एक बार। अच्छा, मॉर्निंग सर। जी सर। सर मैंने प्लान देखने गया थे, हाँ और देखने के बाद मैंने मांगोल बारे में बेनिफिट बताया था, हाँ तो मांगोल ले लिया था। हाँ और मांगोल लेने के बाद 2 दिन लेने के बाद वो बोला कि मेरा पेट फूल रहा है और एसिडिटी हो रहा है। हाँ
ये मेरा सवाल है। और दूसरा सवाल टाइम है चेंज सर। कर दीजिए मानगोल का, खाना खाने के बाद देना शुरू कर दीजिए। सर क्वांटिटी, सर क्वांटिटी। सेम क्वांटिटी रखना। खाना खाने के तुरंत बाद उनको बोलिए पीजिए, उल्टा एकदम होगा करके। कुछ लोगों को ये रेयर में हो सकता है, मतलब लाखों में एक दो आदमी ऐसा हो सकता है इसको यार, तो उसको सर उल्टा कर। ऐसे सर सर ऐसे 2 आदमी के साथ हुआ है सर। हाँ तो उनको मानगोल के साथ आप लिव 2000 भी दीजिए, ठीक है सर। और सर खाना मैंने खाने क्या के बाद सर मैंने क्या किया, उसको बोला है जे आप काम कीजिए, आप मंगोल जो 30 ml होता है आप हाफ ले लीजिए, 15 ml ले नहीं, लीजिए। हाफ लेने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा ही ले लीजिए, खाना खाने के बाद दे दीजिए, ठीक है सर। और सर दूसरा सवाल है सर, एक लेडी है, उसका सर सुबह में जब उठता है, नींद से उठता है, तो उसका पाँव में सूजन हो जाता है और फूल जाता है। बिना रिपोर्ट तो नहीं बता सकते, कोई रिपोर्ट है तो बात करेंगे सर, है ना। मैंने सर उसको रिपोर्ट आप भेजिएगा, रिपोर्ट आप भेजेंगे तो जरूर उसके ऊपर बात करेंगे सर। रंजिता कुमारी आइए एक बार। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी सर, अर्जुन जी जी। मेरा एक जानकारी प्लान के रिगार्डिंग है। जैसे हम लोग प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं तो सेल्फ कमीशन 15%, 6 से 15%, और जी परफॉर्मेंस बोनस 40% बताते हैं सर। और 24% अपना लेवल इंसेंटिव जो ट्रेवल फंड सारे फंड आते हैं। तो जो हाँ 40% का गणना हम बताते हैं सर, वैसे तो उसको जोड़ने पे 51% चला जाता हाँ, है, 51 हो जाए। टोटल 90% हो जाता है। तो 40% कंपनी अपने टर्नओवर से वीकली वो निकालती है, तो इसको कैसे प्रेजेंट करे सर? इसको रखने की जरूरत नहीं है सर, लोगों को पैसा दिखाइए ना सर। कंपनी ने अपने हैंड से जो है पैसा रख दिया उसके ऊपर ना 40% अपने अपने टर्नओवर के साथ। तो कुछ लोग उसको 51% भी लेते हैं, कुछ लोग उसको 66% भी लेते हैं। 51 ही क्यों लेते हैं, और भी ज्यादा लेते हैं, है ना। तो हमको दिखाना है कि आपको इस सवाल के ऊपर जो है, आदमी को जब जब करियर कहीं पे चाहिए तो उसको ये कैलकुलेशन नहीं चाहिए, है ना। ये जिसको भी करियर चाहिए उसको चाहिए कैलकुलेशन, मुझे इतना काम करने से कितना पैसा आएगा। तो आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूँ, इस चीज को लिख के रखिए कि माई रिचार्ज में एक बीबी बनती कितने पैसे से है। तो ये लगभग हम एवरेज जब करेंगे, ऐसे तो ऊपर नीचे होता है, जैसे हमारे कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट में 50% होती है, न्यूट्रा में किसी में 60 होती है, किसी में 75 भी होती है ना। लेकिन एवरेज जब हम निकालेंगे तो 1 रुपया 55 पैसा इजकल टू एक बीबी बनता है माई रिचार्ज के प्रोडक्ट पे ना पूरा। जब भी हमारा पूरा बिजनेस जब भी होगा आपका, जैसे आपका 1 लाख बिजनेस है आपकी टीम में, तो आपकी टीम ने टोटल 1,50,000 से 1,60,000 के बीच ही बिजनेस किया। आप देख लेना रुपयों में इसको, इससे ना ऊपर मिलेगा ना नीचे मिलेगा। तो 1 रुपया 55 पैसा हमारा एक बीबी के इक्वल टू आता है। जब भी कोई व्यक्ति इसको पूछता है तो हमको ये दिखाना है कि आप 1 लाख रुपया या 50,000 रुपए आप कितना आपकी टीम बिजनेस करेगी तो उससे आएगा, ना कि ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट है ना। तो उसमें पहला 2 लेग के मैच से 10%, अकेली तीसरी लेग से 12%, चौथी लेग से आपको 14%, पांचवें डब्बों से 15% में कंपनी ने एक प्रोविजन रखा कि हम 40% हमने हमने इसके ऊपर करते हैं। इसमें उतना ही जाता है, ऊपर नीचे हल्का होता रहता है, कभी 10 पैसे ऊपर हो गया, कभी 10 पैसे कम हो गया, लेकिन ये प्रोविजन वहीं पे है। आगे वाले हैं वो तो फिक्स है, परसेंटेज है ना। ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, रॉयल्टी, वो तो फिक्स है, उस पैरामीटर से ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। अगर कम लोगों ने अचीव किया तो ज्यादा रॉयल्टी बन जाएगी, ज्यादा लोगों ने अचीव किया तो थोड़ा नीचे आ जाएगा परसेंटेज, और वो उतना ही बिजनेस बढ़ जाता है। तो इस सवाल का जो है ना जवाब मेरे आइडिया से देने की भी जरूरत नहीं है आपको, और इसको खुद को कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं। कैलकुलेट ये करनी है कि मैं अगर 10 लाख का बिजनेस कर रहा हूं या 5 लाख का बिजनेस कर रहा हूं तो मेरी टीम में पैसा कितना आ रहा है, हमको कितना आ रहा है, टीम को कितना आ रहा है। तो उससे हमें समझ में आ जाएगा। पहला सवाल हमने निकाला कि 1 रुपया 55 पैसा इक्वल टू एक बीबी। अब दूसरा सवाल यह है कि बीबी पे कितना परसेंट हमको डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी। तो वो है हमारा 64% जो है। तो वो जब हम रुपया के अगेंस्ट में हमारा इनकम निकाल के देखेंगे ना, तो हमें आइडिया आ जाएगा, यार हमने बिजनेस किया था इतना, मुझे कमीशन आया इतना, मेरी टीम में इतना है। तो वो सारा हमको समझ में आ जाता है उस चीज को। तो इसका क्योंकि फिक्स नहीं होगा इस प्लान में कि आप निकाल पाए, लेकिन इसमें आप इनकम को फिक्स निकाल सकते हैं।
इसमें आपको बिजनेस के बाद तुरंत पता होता है कि मुझे कितनी इनकम आने वाली है। आपकी टीम में जब भी हम देखते हैं तो सिंगल हमें देखना है। जैसे आपका देख रहे हैं तो आपको देखना है, धीरज जी आपका देख रहे हैं तो धीरज जी को अपना देखना है पहले, आपका अलग से, दोनों का हम मैच करके देखेंगे तो नहीं आएगा ना। ऐसे आप अपनी डाउनलाइन का, लेकिन आप इसमें ऑलमोस्ट एक्यूरेसी के पास पहुंच जाते हैं कि साहब मेरे को 25,000 आने वाला है कि मुझे 30,000 आने वाला। मतलब ऐसा इसमें ब्लाइंडनेस नहीं होगा कि साहब आपको अचानक से आपने 30 अनुमान लगाया था और 25 आ गया, नहीं। हाँ, ये हो सकता है आपने 30 अनुमान लगाया, 29,950 आ गया। तो किस में, क्योंकि आगे वाले रॉयल्टी फंड जो जुड़ते हैं, तो परफॉर्मेंस बोनस में आपको कितना पैसा मिलने वाला है, आप ये 0 पैसे तक जोड़ सकते हैं ना। किस 35,460 रुपए आएंगे तो वो उतने के उतने आएंगे आपको। तो वो यहाँ पे हमको वो कैलकुलेशन में जाना है, ना कि 40%, 51%, 66% है ना। और हमको कोशिश करना है, इसलिए मैं बोलता हूँ हस्बैंड वाइफ कोई भी आप मिस्टेक करके भी, बहुत सारे लोग जानकारी नहीं होती है फैमिली में ऐसे आइडिया खोल देते हैं, मत खोलो। कंपनी तो एक व्यक्ति एक आईडी देखती है, लेकिन आप अगर हस्बैंड वाइफ एक साथ काम कर रहे हो अपनी 6 लेग पे, आपका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क मेंबर नहीं बना रहे हम लोग नेटवर्क बना रहे हैं। आपका नेटवर्क का भी स्ट्रक्चर कैसा है वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बोलता हूँ 6 पे शुरू में ताकत लगाओ, पूरा 6 को खड़ा करो, 1 लाख पे पहुंचो, अगली 6 वापस खड़ी हो जाएंगी आगे से। तो उसके ऊपर हमें काम करना है। तो मेरे आइडिया से आपको पांडे जी इसका जवाब मिला होगा। कोई और सवाल है आपका? नहीं सर, ठीक है सर, समझ में आ गया सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। रमेश बरेठ जी आइए एक बार। जी थैंक यू सर, मैसेज और मॉर्निंग सर। जी सर। जी सर, मेरा क्वेश्चन है, जैसे हम प्लान दिखाने के बाद सर हम सामने को उनको क्लोज करना है, तो उसी टाइम पे बताते हैं सर कि हाँ हमें प्रश्न पूछना से ज्यादा हम क्लोज आसानी से कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर मेरे को थोड़ा बेहतर से नॉलेज चाहिए सर। एक तो अंदर का डर निकाल दीजिए सर। किसी को प्लान दिखाते हैं ये आदमी ज्वाइन करेगा कि नहीं ज्वाइन करेगा, इस पे अपने दिमाग में लेके मत चलिए। पहला तो हमारे अंदर में डर नहीं होना चाहिए इस चीज का ना। दूसरा ये है, प्लान जब दिखाए तो हमने 2 चीजें ये पैरामीटर को नापने के लिए दिखाई है। बहुत चीजें कोई कर रहा है, बीच में मोबाइल देख रहा है, नहीं ज्वाइन करेगा आपके साथ। बच्चे बीच में आ रहे हैं, गिच पिच चल रही है, अरे वो हो गया। आप वो अप्रोप्रिएट टाइम लेके आदमी को हमें प्लान दिखाना है। जब आप उनको देख रहे हैं वो आपको देख रहे हैं, है ना। हम हमारे प्लान दिखाने से आदमी नहीं ज्वाइन करेगा। अगर ऐसा सिचुएशन है जो हम जो बात कर रहे हैं वही बात वो पूरा सुन रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये परफेक्ट टाइम है। जब प्लान में हम पूछे कि आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी इसमें और कितना पैसा। कोई भी आदमी बोलता है मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, यार अच्छा पैसा कमाना, अभी अनुमान नहीं है लेकिन कमाएंगे, इसका मतलब है ही इज रेडी टू ज्वाइन। तो वहां पे हमारा अगला जो है प्लान में नहीं है, वो आपके पास होना चाहिए। सर आप पेमेंट यूपीआई से करेंगे कि कैश करेंगे, है ना। और वो लिस्ट बहुत सारा, आप आदमी के सामने प्रोडक्ट का बहुत लंबी लिस्ट मत रखिए सर। आपको सिलेक्शन करके देना पड़ेगा उनको, चाहे वो डायमंड क्लब हो, चाहे स्मार्ट कंज्यूमर हो, चाहे न्यू ज्वाइनिंग ऑफर कैसे भी है, आपको सिलेक्शन देना पड़ेगा। आप जब भी बुक फैला देंगे ना 150 प्रोडक्ट की, तो आदमी डिसाइड ही नहीं कर पाएगा उसके अंदर। हाँ 19-20 हो गया, बोला नहीं यार ये वाले की जगह कुछ और होता, तो फिर आपको इमीडिएटली कोई चीज रखनी पड़ेगी उसमें कि ये कर सकते हैं इसको करके। तो ये है क्लोजिंग के टाइम पे उतना ही, जितनी ताकत से आपने प्लान दिखाया उतनी ताकत से आपको ये सवाल भी पूछना है, पेमेंट यूपीआई से करेंगे कि कैश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग प्लान दिखा के वहीं पे छोड़ देते हैं, इसको छोड़ना नहीं। अच्छा कई बार एक आदमी आप प्लान दिखा रहे हैं सर, और दिखाते दिखाते एक आदमी बोलेगा अरे भाई ज्वाइन कैसे होना है इसमें, आपने आधा प्लान दिखाया। कुछ लोग बोलते हैं रुक जाओ प्लान तो पूरा दिखा लो। भाई वो पॉइंट आ गया है जहां पे व्यक्ति को आप जिस काम के लिए इन व्यक्ति के पास आए थे, उन्होंने बोला ज्वाइन कैसे होंगे, आपको प्लान उसी जगह पे स्टॉप कर देना है। उनको सीधा बताना है ज्वाइनिंग अभी करा देंगे, पेमेंट कैसे करोगे, यूपीआई से करोगे कि कैश करोगे, और कैसे करना है उसको करके इमीडिएट यहीं पे हमको ज्वाइनिंग करानी है। और ऐसे व्यक्तियों को, कुछ लोग क्या है कि ज्वाइनिंग नहीं कराते, सीखते नहीं डिजिटल रूप में। माई रिचार्ज का पूरा काम ही है डिजिटल। आपको इमीडिएट ऐप पे आना चाहिए, विद इन अगले 5 मिनट में उनकी एंट्री होनी चाहिए आपके सिस्टम के थ्रू। मोबाइल के ऊपर कंपनी ने सब कुछ दे रखा, 5 मिनट में उनकी आईडी लगनी चाहिए।
10 मिनट के अंदर पूरा प्रोडक्ट सिलेक्शन होके पैसा आपके पास होना चाहिए, या सीधा भेजना है कंपनी को, ऑनलाइन करना, कंपनी को पैसा भेजो, ऑनलाइन ऑर्डर लगवाओ उसी टाइम पे, इमीडिएट। तो इस चीज को हमें देखना है कि कैसे इस चीज को, तो आपके सवाल का पहला वो है कि प्लान दिखाते वक्त जो कि हमें पता कैसे चलेगा कि यह आदमी एकदम रेडी है, तो वो वहां उन सवालों से पता चलेगा। बीच में जैसे बोला कि भाई ये इसका ये है प्रोडक्ट, कुछ फायदा, वो ऐसे सवाल पूछने लगे, मतलब एकदम इंटरेस्टेड हो गया, इसका मतलब ये व्यक्ति ज्वाइन करना चाहता है। तो उसी जगह हमको अपने प्रोसेस को रोक के उनको ज्वाइनिंग की तरफ बढ़ना है। आज करना रमेश जी इस चीज को आपने 1-2 लोगों के साथ लगातार, मतलब इस प्रक्रिया को सेम डे जब हम कोई चीज एक्सपीरियंस करते हैं उसको करना है, तो फिर वो लगातार हमारे हैबिट में आती चली जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार सवाल आ रहे हैं, नोट कर लीजिए आप अपने आप को। एक बार मैं चंदना सेनापति को यहाँ पे बुलाता हूँ। चंदना मैडम। मेरे से जा रहे थे मॉर्निंग सर। जी मैम। कल मैंने कल नेक्स्ट टाइम में मेरे को चेतन सर एक बात पूछा था, तो हम कुछ लोगों को पूछा था जे आप लोगों का टारगेट क्या है, तो हम लोगों ने बताया जी हमारा टारगेट ये है। तो सर ने ये एक बात पूछा था कि अभी तो किसी ने नहीं बोला जो 1 लाख रुपया कैसे कमाना है। तो माई रिचार्ज इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, तो सर का वो बात अच्छा लगा। और 2 पॉइंट है मेरे पास। टीम को तो मैं टारगेट देती हूँ, छोटे छोटे करके टारगेट देता हूँ। तो किसी को बोलती नहीं जो डायमंड क्लब करो, जबरदस्ती नहीं करती हूँ। स्मार्ट करियर करो, जबरदस्ती नहीं करती हूँ। वो लोगों को छोटे छोटे टारगेट से टारगेट बढ़ाती हूँ, खुद का जैसा टारगेट है ऐसा करती हूँ। और नेक्स्ट टारगेट है सर, मेरे को हेम्योपैथी डॉक्टर मेरे को प्रोडक्ट मांग रहा है 2-3 जन, वो लोगों को क्या मैं दूं? बिल्कुल दीजिए मैडम। होम्योपैथी मांगे, एलोपैथी मांगे, नॉन पैथी मांगे, ये पैथी कोई भी मांगे, सबको दीजिए, क्यों नहीं देना है? ठीक है क्या सर, दिक्कत है उसका? ठीक है सबको सर। देना है। 1 लाख इनकम कब कमाएंगे मैडम? जब मैंने बोला 15 सपने लिखो अपने, 15 ड्रीम, छोटे से लेके बड़े तक। Yes. पहले 5 को जो है तारीख लगाओ, कम से कम 15 को लगा सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन पहले 5 को अगर लगाएंगे तो आप उस दिशा में जाएंगे जो कृष्णा जी ने जो सवाल पूछा था, उस दिशा में करके 1 लाख कमाना इस बिजनेस में बहुत ही आसान है। माई रिचार्ज का जो ड्रीम अनलिमिटेड प्लान है, इसमें 1 लाख रुपया कमाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। ये इस बिजनेस प्लान की जो है ताकत है, बहुत जबरदस्त है। बहुत बढ़िया, चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं यहाँ पर सत्यवान जी को बुलाता हूँ, वेद सत्यवान जी। सत्यवान जी आप आइए एक बार। जी सर, अनम्यूट कर, एक बार अनम्यूट करिए वापस सुनिए जी। हेलो। जी सर बोलिए, सुन पा रहे हैं। माय रिचार्ज मॉर्निंग सर। माय रिचार्ज मॉर्निंग सर। सर प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। सैनिटरी पैड जहाँ दिया है बड़े अच्छे रिजल्ट हैं जी। और इसका पैकिंग अगर बड़ा हो जाए तो सर और अच्छा रहेगा। और एक बड़े साइज में, ये साइज थोड़ा छोटा रहता है, कई जगह शिकायत आती है। हमारे पास हमने नोट है सर, लेकिन ये सलाह जो देनी है ना कंपनी को, इसको मैं बोलूंगा कि आप लोग ने अपना कभी ये हुआ है तो दे दीजिए, लेकिन सलाह वाले मोड को छोड़ दीजिए। कंपनी के पास एक पैरेलल एक मॉडल है जिसके ऊपर काम करती रहती है, क्योंकि ये सैनिटरी पैड सब कंपनियां जो है, मैंने पहले भी बताया है कि इसका सबसे मिनिमम जो प्राइस है ना वो 66 रुपीज है। यही 6 पैक का जो हम लोग देते हैं इसको, जो सेम क्वालिटी की। लेकिन छोटा पैड, बड़ा पैड, ये सारे में कंपनी अपना काम करती रहती है सर। तो हमारे को अभी क्या अवेलेबल कराती है उसको देना है हमको, हमें उसके ऊपर काम करना है। कोई सवाल है आपका, कोई चीज? नहीं सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया है। तो हमारा जो है सैनिटरी पैड के बारे में आपने बात किया है, तो हाँ सारे लोग जानते हैं कि मेट्रोना जो है वो हर लेडी तक हमको लेके पहुंचना है। अभी ना इंडिया में 36 करोड़ महिलाएं हैं जिनको सैनिटरी पैड की जरूरत होती है। 12 करोड़ महिलाएं अभी तक सिर्फ जो है सैनिटरी पैड यूज करती हैं। अभी भी 24 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जिन तक अभी तक सैनिटरी पैड नहीं पहुंचता है। वो ऐसे चीजों को इस्तेमाल करती हैं जो उनकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो हमको इस चीज में भी हमारा जो सारे प्रोडक्ट को, मानगोल भी आप शामिल करिए, तुलसी भी करिए, शिलाजीत भी करिए, ग्लूकोसामाइन करिए, और डेली यूज का जो है सुबह से रात तक का प्रोडक्ट करिए, लेकिन उसमें जो है सैनिटरी पैड को भी हमको देना है। एक तो इसमें अनियन स्ट्रिप आती है,
दूसरा है कि ये ड्राई नेट सिस्टम से बना होता है, तो ये चिप चिप बिल्कुल नहीं करता है, बहुत हल्का है। और इसमें 1 ग्राम जो है सेप पाउडर आता है, तो ये लगभग 100 ग्राम जो है 100 ml तक पानी का जो है फ्लो है, ब्लड फ्लो है, उसको हैंडल कर लेता है। तो ये हाईएस्ट है अपने अपने लेवल पे। तो लेकिन अकेला सैनिटरी पैड बेचने से नहीं होगा ना, हमको साथ में सारी चीजों को जो है शामिल करना है। आपने बोला तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस चीज को रखा। स्वप्ना मैडम आइए एक बार। जी मैम। মাইরি চাজারবেদা মর্নিং স্যার। जी मैम। স্যার আমার এক রিলেটিভ আছে, উনার কিডনিতে প্রবলেম আছে, ডায়ালিসিস চলছে। हाँ তো আপনি বলেছিলেন মাঙ্গল আর অ্যালোভেরা ক্যাপসুল আর লিভ 2000, তো ডোজটা কিভাবে দেব আমি স্যার বুঝতে পারছি না। मैडम एक बार रिपोर्ट उनका आप भेज दीजिए, क्योंकि किसी को भी ना हम ऐसे देते हैं तो उसका एक बार रिपोर्ट और लेटेस्ट रिपोर्ट जो है ना होनी चाहिए। इस चीज को भी ध्यान रखना है। जितने भी क्रिटिकल जो भी पेशेंट होते हैं ना, हमको बहुत सारा भागना नहीं है, लेकिन हमारे आसपास में होते हैं उनको हम देते हैं, तो उनका लेटेस्ट रिपोर्ट आप जरूर उसको लेके, पुराना कुछ लोग 6 महीने पुरानी रिपोर्ट, उसके बिहाफ पे मैं सारे साथियों को बोलूंगा आप मत किसी को प्रिस्क्रिप्शन करिए ना, बोले लेटेस्ट रिपोर्ट है तो उसी के ऊपर आप भेजिए, उसके ऊपर देखेंगे। तो जूम में इसके ऊपर अपन कुछ बात कर नहीं सकते हैं उसके अंदर। और आगे थोड़ा बढ़ते हैं एक बार। नवनीता मुखर्जी, नवनीता मैडम आइए एक बार, अनम्यूट करिए मैडम, आपको एक लिंक भेजा हमने, वो कर नहीं पा रही हैं। श्रीधर पंडा आइए एक बार, श्रीधर पंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोयिता मैम अपने आप को अनम्यूट करिए एक बार। माइचेस मॉर्निंग सर। सर मैं आज एक रिचार्ज सेक्टर के बारे में क्वेश्चन है सर। सर मेरा जो गैस बुकिंग हो रहा था, ये 3-4 महीने से मैं नहीं कर पा रही हूँ, वो बाहर से कर रहा हूँ। हाँ मैडम, इसका क्या है कि कुछ लोग ने बहुत सारा मिसयूज कर लिया उसका। तो इसकी यूपीआई होती है, तो वो हमारी नहीं, बहुत सारी कंपनियों की यूपीआई ना बीच में सस्पेंड हो गई है, लेकिन उसका टेस्टिंग शायद कुछ अभी चालू हुआ है वापस से, तो उम्मीद करेंगे कि बनेगा। लेकिन इसके ऊपर कुछ पैरामीटर हम लोग लेके आ रहे हैं, क्योंकि अभी क्या बहुत सारा गैस एजेंसी वाला इसको यूज कर रहा है, जैसे ही चलाते हैं वो अपना 1000 सिलेंडर मार देता है इसके ऊपर, 500 सिलेंडर इसका बुक कर देता है करके। तो उसका क्या मिसयूज एक ही लोकेशन के ऊपर इतना सिलेंडर बुक होने से, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उसमें हमको जो लाइसेंस है उसके ऊपर मल्टीपल सिलेंडर्स अलाउड नहीं है, अधिक नो का ये होता है, तो इसलिए। और सर और एक क्वेश्चन है सर, वो जो हमारा जो मनी ट्रांसफर, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर जो है सर, वो भी नहीं कर पा रही हूँ मैं सर। नहीं, मनी ट्रांसफर में कोई दिक्कत नहीं है मैडम, आप डीएमटी का जो हेल्पलाइन है ना उस पर आप बात कर लीजिए, वो आपका जो भी इशू होगा उसका सॉल्यूशन कर देंगे, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सर उसमें एक लिमिटेशन है ना सर, 5000? हाँ, लिमिट से आगे तो नहीं कर सकते मैडम, वो लिमिट तक ही कर सकते हैं, वो लिमिट तो मंथली, उससे आगे तो नहीं कर सकते हैं। ओके सर, तो गैस का ये कितना दिन फिर लगेगा सर? ये कुछ आइडिया नहीं है मैडम इसके ऊपर, जब चीजें टूट जाती हैं, रुक जाती हैं, तो फिर अपने हाथ में नहीं रहता। इसमें फेस भी नहीं होता है, मतलब फेसलेस है ये जो बीबीपीएस जो है ना, इसमें सामने फेस नहीं होता है, पूरा आपको मेल्स और उनका चैट बॉक्स होता है, उसी पे बात करना होता है, उसपे कोई सामने आदमी कुछ होता नहीं है इसके अंदर। ओके सर। तो वो सिस्टम के थ्रू ही सारी चीजें चल। तो ये आपका, आपको इसका जवाब मिला होगा। सुरेंद्र यादव जी आइए एक बार। जी सर। मॉर्निंग सर। जी सर, मैंने एक टॉन्सिल का पेशेंट था, उसको यहाँ पे टॉन्सिल हो गया था, तो उसको नोनी, काढ़ा और तुलसी दिया हूँ सर। जी। उसमें सर और कुछ ऐड करना पड़ेगा क्या? ना, और तो ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, इसी से तो ठीक हो जाएगा। बहुत बार में देसी जो है ना, हमारे आसपास में बोलते हैं टॉन्सिल हो गया तो बहुत कुछ ऐसी टाइट चीज खा लो है ना, उल्टा इसका सुझाव देते हैं, उस चीज को ध्यान रखना है ना। हल्का गर्म पानी पीना है लगातार, और काढ़ा एक बार से ज्यादा नहीं पीना, सुबह सुबह उनको काढ़ा पीने के लिए बोलिए। और ये कोई भी हार्ड चीज नहीं खानी है टॉन्सिल वाले को ना, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है, जिससे कि उनको कोई भी दिक्कत ना आए। ये बाम भी नहीं, आप अनम्यूट करिए, वापस से म्यूट हो गई।
जी मैंने उसको सर बाम भी दिया हूँ, बाम का भाप लेने के लिए सप्ताह में। हाँ, आप स्टीम लेने के लिए बोल सकते हैं, स्टीम से तो फायदा होगा, स्टीम में तो कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं पहले है। मैंने सर उनको 2 दिन गैप करके देने के लिए बोला, अब उनका 2 दिन गैप हो गया 7 दिन तक, अब मैंने उनको 7 दिन गैप करने के लिए बोल दिया है। ना, बाम का तो आप स्टीम तो आप रोज ले सकते हैं, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है सर। कम अच्छा, लेना, रोज? मात्रा कम लेनी है, रोजाना स्टीम ले सकते हैं। जिनके भी लोगों को गले से ये से रिलेटेड प्रॉब्लम, अभी तो सर्दियां आ गई, रोज स्टीम ले सकते हैं। बाम बहुत कम डालना है, ज्यादा नहीं डालना है साथ में, नहीं तो जलन होने लग जाती है, इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए तो दोस्तों, आज का जो है हमारा टाइम यहाँ पे हो गया खत्म, और साथी जो पूछना चाहते थे उनसे हम बात करेंगे अगले वीक में। कल एक शानदार सेशन में हम लोग मुलाकात करेंगे जो है हैबिट्स के ऊपर, और आज जो है स्मार्ट कंज्यूमर, जिन साथियों का किसी कारण से सारे फेस्टिवल्स थे उसके कारण से अगर छूट गया है तो आप शाम में जाके ट्राई करेंगे तो नहीं होगा। आपकी आईडी में एक लिस्ट होती है कि किस व्यक्ति का छूट गया है, उनका निकालिए, पर्सनली कॉल लगाइए, किस कारण से नहीं हुआ है उसको कंप्लीट कर लीजिए टाइम रहते रहते ही। और जो कृष्णा जी ने पूछा था कि सर प्लान दिखाने के लिए लोगों को कैसे इंस्पायर करें, तो उस सवाल के ऊपर हमने काफी सारी डिस्कशन किया है। तो आप खुद दिखाना शुरू करिए, अगले 700 दिन अपनी डायरी में लिख लिए कि अगले जो 2 साल ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब मैं एक भी प्लान नहीं दिखाऊंगा, मैं खुद दिखाऊंगा। आपकी टीम अपने आप दिखाने लग जाएगी। अगर अभी वाली टीम नहीं दिखा रही है तो नई टीम बनेगी, वो दिखाएगी उसके अंदर, जो आपको फॉलो करे, क्योंकि टीम लीडर को फॉलो करती है, लीडर के पाथ्स पे चलती है, लीडर जो करता है वही करती है, लीडर जो बोलता है वो टीम कभी नहीं करती है। थैंक यू वेरी मच। आप सारे साथी, रोज जो है संख्या जूम में हमारे बढ़ती जा रही है। कल एक शानदार सेशन में मुलाकात करेंगे, और आज दिन में हम सारे साथी मुलाकात करेंगे जाके फील्ड में। और जो साथी और जो कम से कम डायमंड डायरेक्टर रैंक पे हैं और इस जूम में जो है बोलना चाहते हैं कि सर नेशनल टीम जूम का मुझे भी होस्ट करने का मौका मिले, तो वो कंपनी से जो है जरूर संपर्क कर लें कि सर हमें भी मौका दिया जाए। तो उनमें से सिलेक्शन करके जो है और होस्ट को जो है हम लोग मौका दे रहे हैं यहाँ पर, तो आप सबको भी मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। जय मारीचांद, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद।